सो इसमें हम देखेंगे हमारे पास में क्या क्या पैरामीटर्स को हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। यूजुअली हम टाइम फॉर द फिलिंग या टाइम फॉर द पोरिंग इसमें हम फाइंड करते हैं, and we use two types of gating system. One is your top gate system and another is bottom gate system. Okay, and पहले तो ये gating system के लिए डिजाइन करेंगे, then we'll see what we can do for riser. Okay, तो solidification time of riser वो सब देखेंगे. So in this design of the gating system अभी आप deal कर रहे हैं with the liquid metal. Okay, so the material that is the state of the material is in the liquid state. So this liquid metal, it is going to follow the laws of the fluid mechanics. That is Bernoulli's law, Bernoulli's equation for energy balance, and it will follow the continuity equation for mass balance. Okay, or the rate of mass flow balance. Okay, so we'll follow this. So just I will write. Okay, here the laws of fluid mechanics will be used, okay, for design of various elements. Okay, so the liquid metal which runs through various channel in the mold obeys Bernoulli's equation of energy balance and continuity equation of mass balance. Okay, so we'll work on this Bernoulli's equation and continuity equation. These two will work on. Okay, so have you studied this Bernoulli's equation and continuity equation in your fluid mechanics till now, as the fluid mechanics is in your current semester only? So you may have a bit of knowledge. Okay, नहीं है तो थोड़ा सा इसको हम just एक basic equation आपको मैं इसमें लिखाऊंगा. Okay, so like what is your Bernoulli's equation? किसी को मालूम है? Can anyone tell what is Bernoulli's equation? No one. क्या था फॉर्मूला? P by rho g plus V square by 2g plus Z equals to constant. Okay, so this is your pressure head, this is velocity head, and this is your elevation. Okay, so इन तीनों का जो सम होगा वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए whenever it is passing through, whenever the working material is a fluid. ठीक है, या जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है in various channel, तो वहां पे जो आपका एनर्जी बैलेंस होगा वो ये क्या होगा कि प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस एलिवेशन, it should be equals to constant. Okay, so if there is a tube, okay, and it is some fluid is passing through and it is entering the tube at station 1 and exiting at station 2. Okay, so your formula will become P1 by rho g, okay, plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. Okay, तो इस तरह से आपके वेरियस चैनल हो सकते हैं, इस तरह से कुछ आपका चैनल हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है, एंड अब ये आपका क्या कहते हैं एलिवेशन, यहाँ पर कुछ और आ सकता है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, यहाँ हो सकता है ये आपका कांस्टेंट एलिवेशन पॉइंट हो. ठीक है, बट यहाँ पर आपका
एंट्री पॉइंट पे डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है, या फिर कुछ यहाँ पे एलिवेशन कुछ अलग हो जाए इस तरीके से, ठीक है। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स को पास करते हुए आपका फ्लूइड जा रहा है, तो सभी में आपका ये नीचे वाला जो बर्नौलीज इक्वेशन है इट विल वर्क, ओके। एंड कमिंग टुवर्ड्स योर कंटिन्यूटी इक्वेशन, ओके। ये तो आपका मास बैलेंस करता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ मास या फिर मास फ्लो रेट। सो एम डॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस केस में होगा मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ओके। मतलब जितने आपका जितना मास फ्लो रेट से ये आपका वन स्टेशन को पास करेगा उतने ही मास फ्लो से यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। तो मास फ्लो रेट का मतलब हो जाता है आपका, यहाँ पे हम बात करेंगे इसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो विल राइट डेंसिटी कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी डेंसिटी भी आता है, मास इज व्हाट, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू डेंसिटी। अभी वॉल्यूम इज व्हाट, अभी डेंसिटी तो कॉमन है, डेंसिटी निकल जाएगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट या कैपिटल वी इसको ले लो, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल्स टू, ये इसको क्यू बोलते हैं, रो क्यू, ठीक है। some books you may find this as q, ठीक है। so it will find as q is volume flow rate, okay. So and this is q equals to area into velocity into and this m dot में आपका रो भी आ जाएगा। अभी क्या है कि आपका एंट्री पॉइंट पे भी एक ही फ्लूइड है, एग्जिट पॉइंट पे भी वही फ्लूइड है, तो आपका रो से रो कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी, ओके। सो दिस रो इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये जो रो है दैट इज आल्सो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके। सो रो से रो कैंसिल, सो व्हाट विल गेट a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, where small v is velocity of fluid at given point, ओके। सो इस तरह से है आपका, समझ में आ गया। सो विल यूज दिस इक्वेशन and we are going to use this equation, this is equation A and equation B, okay. We'll use these two equation in the design of gating system, okay, Bernoulli and continuity equation. I hope अगर आपने फ्लूइड में नहीं पढ़ा हो so अभी whenever it will come into your fluid mechanics chapter you can easily recall all these things, okay. और बेटर वे से पढ़ सकते हैं जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, because it totally deals with your, so now what different parameters we are going to do, okay. Basically हम यहाँ पे काम करेंगे pouring time, we need to find pouring time और filling time, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर आपका जो मोल्ड कैविटी है उसको फिल करने में कितना टाइम आपका लग रहा है। नाउ अब कितना टाइम आपको लग रहा है या कितने टाइम के लिए उसको आपको डिजाइन करना है, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। अभी आपको पता है कि फेरस आपका जो भी मटेरियल होता है या फेरस मेटल होता है तो वहां पे उसका कूलिंग रेट फास्ट होता है ना, तो जो कहाँ कूलिंग रेट फास्ट है तो आपको पोरिंग टाइम या फिलिंग टाइम कम चाहिए। एंड नॉन फेरस मेटल जहाँ पे है वहां पे आपका कूलिंग रेट क्या कहते हैं स्लो होता है, तो वहां पे पोरिंग टाइम या फिलिंग टाइम आपका ज्यादा आप डिजाइन कर सकते हैं उस हिसाब से, ओके। सो व्हाट इज योर पोरिंग टाइम, सो इट इज टाइम फॉर कंप्लीट फिलिंग of the mold cavity, okay. It is the, let me write so it is the time for complete filling of the mold cavity, okay. So अब किस पे ये डिपेंड करेगा वो देखते हैं, it depends on ज्योमेट्री पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, क्या कैसी ज्योमेट्री है उस हिसाब से
एंड मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, सो इट डिपेंड्स ऑन कास्टिंग मटेरियल कि फेरस है नॉन फेरस है, किस टाइप का मटेरियल है आपका, एंड इट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कास्टिंग। ठीक है, इस दो पे तो ये डिपेंड करेगा ही करेगा, एंड आप किस हिसाब से उसको डिजाइन कर रहे हैं, इट ऑल सीज कि किस एनवायरनमेंट में है आपका। ओके, हमारे पास में दो गेटिंग सिनेरियोज हैं। फर्स्ट वी हैव टॉप गेट सिस्टम, ओके, सेकेंड विल सी फॉर बॉटम गेट सिस्टम। यहाँ तक कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? कोई इशू नहीं है ना? Am I audible to all? Yes sir. Okay. यस सर। पार्टिंग गेट इन्वॉल्व नहीं है। हेलो, हाँ बताइए, पार्टिंग गेट का क्या इशू आ रहा है? यस, पूछिए क्या पूछना है। हेलो, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पार्टिंग गेट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज मैंने बताया है ना, पार्टिंग गेट आपका जो कोप के लिए इट विल एक्ट एज अ बॉटम गेट, एंड ड्रैग के लिए इट विल एक्ट एज अ टॉप गेट। तो जब आप टॉप गेट और बॉटम गेट की कंडीशंस आपको पता ही है, तो यू कैन इजिली अप्लाई इन द पार्टिंग गेट। सेम थिंग है ना, हाफ में आप टॉप गेटिंग में सॉल्व कर लेंगे, हाफ में बॉटम गेटिंग करके कर लेंगे। तो हम पार्टिंग गेट को हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। ओके, सो you can see this is your simple schematic of your top gating। okay, इसको एक डायग्राम से और देख सकते हैं, लाइक सिमिलर टू दिस अनदर डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे ये जाके आपका ऐसा गेट बन जाएगा। दिस इज रनर गेट सिस्टम एंड दिस इज योर मोल्ड। ओके, सो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, ये आपका पूरा 0.3 गेटिंग सिस्टम आपका। ये हटा के अब ये नॉट टू दिस ना, सो ये आपका इस तरह से गेटिंग सिस्टम कुछ निकल के आ सकता है यहाँ से। वेट, ओके, जो भी है, जैसे भी समझना है इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सो अभी ये जो हाइट है आपकी, लेट मी टेक दिस हाइट। दिस इज HT के टोटल हाइट बिटवीन 1 and 3। ये आपका HC लेते हैं इसको। ओके, एंड दिस इज पोरिंग, जस्ट पोरिंग बेसिन का जो अपना है, एंड ये स्प्रू है, स्प्रू वाले को हम लेते हैं H2 बोल देते हैं। ठीक है, सो HT इज योर टोटल हाइट ऑफ पोरिंग। ओके, एंड यहाँ पे हम 2-3 वॉल्यूम्स को कंसीडर करते हैं। सो VC इज योर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग या कास्टिंग वॉल्यूम। ओके, एंड then we have AG, so this is cross sectional area of gate। okay, and VG आपका एक आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल VG, एंड लेट मी शेप चेंज कर लेते हैं, V इस तरह से लिखेंगे वेलोसिटी के लिए VG। so this is velocity of metal flow at gate। okay, so ये सब हमने इतने को हमने इसको यहाँ पे ले लिया। now we'll solve for this। okay, so we'll apply Bernoulli's equation।
applying Bernoulli's equation, okay, between 1 and 3, okay, क्योंकि अभी यहां से ये आपका गेट पॉइंट है, ठीक है, अभी गेट से निकल कर आपका मोल्ड कैविटी में फिल हो रहा है, तो आपको ये देखना है ना कि यहाँ तक मोल्ड को फिल करने में लगेगा, ठीक है। तो ये जो VC है, दिस इज योर VC, ओके, ये आपका पूरा मोल्ड कैविटी। सो अभी आपको टाइम फॉर फिलिंग देखना है, ठीक है। तो टाइम फॉर फिलिंग कैसे देखेंगे, लाइक इफ यू एम टॉकिंग अबाउट द टाइम फॉर फिलिंग, तो यहाँ पे अगर टाइम फॉर फिलिंग देखना है TF, है ना, तो इस कैविटी को अगर आपको भरना है तो पता है इस कैविटी को पहले आप कैसे करेंगे कि अभी पॉइंट 3 या स्टेशन 3 से क्या आपका मास फ्लो रेट निकल के आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज इन टाइम्स, तो दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ओके। सो अभी आपको फिर यहाँ पे उतने वॉल्यूम फ्लो रेट से यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको टोटल भरना है, तो टाइम कैसे आ जाएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग डिवाइड बाय यहाँ से जो आपका स्टेशन 3 से जो आपका वॉल्यूम फ्लो रेट निकल के आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे Q3, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट। So that is your, it will give you like how much time is required to fill this mold cavity, okay, with the volume VC. So इसके लिए कैसे करेंगे, so अभी बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। So Q3 आपको यूजुअली फाइंड करना होता है, तो विल अप्लाई कि यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट कितना निकल के आ रहा है Q3, so उसके लिए आपने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया है बिटवीन द स्टेशन 1 and 3, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे है एंड ये भी आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे है। तो दोनों आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे है, तो आपका प्रेशर तो क्या होगा, प्रेशर तो 0 हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा। तो जब प्रेशर बराबर हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पे प्रेशर से प्रेशर आपके कट जाएंगे, आपके पास में क्या फॉर्मूला है, P1 by rho g, ओके, प्लस V1 स्क्वायर by 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 by rho g प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, स्मॉल v, ओके। धीरे धीरे आपको ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, कहाँ पे वॉल्यूम फॉर v है, कहाँ पे वेलोसिटी v है, ओके। सो अभी क्या है, दिस बोथ आर एट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दिस इज गोइंग टू कैंसल्ड आउट, ओके। एंड एट दिस स्टेट पॉइंट 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये पोरिंग बेसिन में आपका फिल है लिक्विड मोल्ड आपका, ठीक है, लिक्विड कास्टिंग या लिक्विड मेटल। तो अभी यहाँ पे लिक्विड मेटल का जो वेलोसिटी है वो स्टैटिक पॉइंट पे एक तरीके से मान के चलते हैं, तो इसको हम कंसीडर करते हैं नेग्लिजिबल, ओके। सो वी कंसीडर V1 टू बी नेग्लिजिबल, ओके, और 0। सो व्हाट इज लेफ्ट, आपके पास में क्या बचा, ओके, ये बच गया, व्हाट इज लेफ्ट इज Z1 V2 स्क्वायर 2g एंड Z, ओके, एंड दिस इज 1 and 3, है ना, 1 और 3 के बीच में, तो इसको हम लिख देंगे P3 और ये V3 हो जाएगा, ये Z3 हो जाएगा, नॉट 2, वो 2 इसलिए आ गया था। तो अभी बात कर रहे हैं चैनल 1 and 3, तो यहाँ पे जो आपका एग्जिट पॉइंट है चैनल है, वहाँ पे हम P3 V3 एंड Z3 लिख देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज लेफ्ट इज, इसको सॉल्व करने के बाद में Z1 माइनस Z3, ओके, इक्वल्स स्मॉल v3 स्क्वायर बाय 2g, ओके। सो Z1 माइनस Z3 है आपके पास में, तो Z1 माइनस Z3 ये अभी आपकी हाइट है, ये आपका Z1 पॉइंट है, ये आपका Z3 पॉइंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, HT आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी H of T, सो दिस इज टोटल हाइट ऑफ द पोरिंग। सो HT इक्वल्स टू v3 स्क्वायर बाय 2g, यहाँ से इसको हम सीधर करेंगे, v3 इक्वल्स टू 2g HT अंडर रूट, होल अंडर रूट, यहाँ से आपको ये V3 निकल के आ जाएगा। नाउ दिस V3, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मेटल फ्लो एट गेट, है ना, जो वही आपका है वेलोसिटी ऑफ मेटल फ्लो एट गेट है, सो दिस इज इक्वल्स टू Vg ओनली, ओके। सो V3 इज इक्वल्स टू Vg, आपका गेट पे ये दिस इज योर गेट, ये आपका स्प्रू है, ये गेट है, ठीक है, ये आपका पोरिंग बेसिन है, गेट के बाद में आपका कैविटी जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे गेट से जा रहा है। ये जो V3 है, दिस इज नथिंग बट Vg ओनली, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ मेटल फ्लो एट गेट, सो ये आपको इस तरह से निकल के आ गया है। सो अभी आपको निकालना है Q3 और यू कैन से Qg निकालना है ना। सो बात करेंगे Q3 या Qg की, सो वी हैव Q3 इक्वल्स टू Qg व्हिच इज नथिंग बट योर metal rate of metal flow, okay, at gate,
सो इसका जो फॉर्मूला है Q3 QG जो भी है, कहीं पर QG मिलेगा कहीं Q3 मिलेगा, सो यू कैन जस्ट राइट इट एज AG okay into VG. So AG I have already given this, so this is cross sectional area of gate, okay, and VG is your again velocity at gate, velocity of metal at gate. So QG आपको यहां से ये आ गया. So time for filling क्या है आपका? time for filling of mold, okay, TF it is given as VC by QG. So this will be your simple VC capital. अभी यहाँ पे वॉल्यूम है, okay, we are talking about this is volume, this is AG and VG, okay. So this is how you get the filling time or the pouring time for the top gate or top gate system. ठीक है, नोट कर लीजिए. यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं. P1 equals to P3 equals to atmospheric pressure, okay. अभी समझा दिया है, लेकिन बाद में रिवाइज करने जाएंगे फिर भूल जाएंगे लाइक क्या बताया था यहाँ पर. So we have done with top gating system. So next is a bottom gate. Bottom gate will do here. Okay. So यहाँ पे बॉटम गेट की बात करेंगे. So इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है. वही जो आपको कल बनाया था. This is 1 point, this is point 2, then point number 3, entry to the sprue, entry to the runner, or you can say gating, है ना, all 3, and then ये आपका कास्टिंग का इसको 4 ले लेंगे क्योंकि ये नीचे से ऐसा ऊपर जा रहा है. 3 पॉइंट, ठीक है. सो अभी इसकी हाइट देखेंगे. सो यहाँ से ये जो हाइट है पूरी, ये आपका HT है, टोटल हाइट ऑफ पोरिंग. दिस इज HC, ओके, एंड ये आपका मोल्ड हाइट है. मोल्ड कैविटी है, उसकी क्या हाइट है, ओके, HM. So HM is height of mold, okay. अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? So again applying Bernoulli's equation. Applying Bernoulli's equation between 1 and 3, because anyhow आपको तो निकालना है पूरा आपका फॉर्मूला, ठीक है. तो आपको देखना है सब चीज. नाउ 1 and 3 है, अगेन आपको पता है यहाँ पर सेम आपका आ जाएगा, ठीक है. सो वी हैव P1 by rho g plus small v1 square by 2g plus z1 equals to P3 by rho g, okay, plus v3 square by 2g plus z3, okay. So अभी यहाँ पर जो आपका P1 है, अगेन इट इज एट एटमॉस्फेयर, ओके.
यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके, एटमॉस्फेयर पे ले रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गेज प्रेशर के टर्म में। ओके, सो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म में बात नहीं कर रहे हैं, हम गेज प्रेशर के टर्म में बात कर रहे हैं। सो लेट मी राइट दिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट P3, सो दिस इज गेज प्रेशर, ओके, एट स्टेशन 3। तो इसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अगर ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाले जितने भी होते हैं उनको आप गेज प्रेशर बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो नीचे होता है उसको आप वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं या फिर नेगेटिव गेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका जीरो लाइन बन जाता है, उसके ऊपर वाला सब पॉजिटिव होता है, उसके ऊपर वाले सब नेगेटिव होते हैं। और अगर आप एब्सोल्यूट में जाते हैं तो एब्सोल्यूट में फिर आपको जो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होता है वो आपके लिए, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, तो ये आपका लिए क्या कहते हैं, इट विल एक्ट एज अ बेसलाइन। ठीक है, और इस तरह से गेज प्रेशर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट एज अ बेसलाइन, तो इसके ऊपर गेज प्रेशर, इसके नीचे वैक्यूम प्रेशर। और एब्सोल्यूट सिस्टम की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जहां पर आपका एंट्रोपी पूरा जीरो हो जाता है, जहां पे आपका मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो हो जाता है। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट आपका जो प्रेशर होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोल के ट्रीट करते हैं, एंड उसके ऊपर सब आपका पॉजिटिव में ही होता है। तो उस केस में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो आपका 101.3 किलो पास्कल में आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये दिस ऑल यू हैव स्टडीड इन योर फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग यहीं से ही होती है फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर एंड ऑल। ओके, चलिए, सो P1 we are considering 0 because it is a gauge pressure. So इसमें अगर भूल जाए तो लिख लेता हूं मैं, P1 is atmospheric pressure। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0 लेते हैं इसको, गेज प्रेशर के लिए बात कर रहे हैं तो गेज प्रेशर के डेफिनेशन के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ बेसलाइन, तो वी आर कंसीडरिंग इट एज अ 0। ओके, सो ये आपका बन जाएगा, दिस इज Z1 माइनस Z3 एंड V1 अगेन 0 होगा क्योंकि आपका स्टैटिक पॉइंट पर है, सो V1 इज गोइंग टू बी अगेन 0। ओके, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये चार आपके पॉइंट बच जाएंगे, तो Z1 माइनस Z3 इधर आ जाएगा, एंड यू विल हैव स्मॉल v3 स्क्वायर बाय, ओके, थोड़ा सा स्मॉल v3 स्क्वायर बाय 2g, ओके, प्लस p3 बाय rho m g, okay, where your rho m, it is density of liquid metal। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और लिक्विड मेटल लिख सकते हैं। ओके, ये आपका बन के आ जाता है, एंड ये आपका Z1 माइनस Z3 अगेन आपको पता ही है, ये जो टोटल हाइट है, हाइट ऑफ द पोरिंग HT है, Z1 माइनस Z3। ओके, तो ये आपका बन जाएगा HT इक्वल्स टू V3 स्क्वायर बाय 2g प्लस P3 बाय रो mg। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा रियलाइन कर लेंगे तो ये बन जाएगा GHT के, G को उधर ले जाएंगे, सो V3 स्क्वायर बाय 2 प्लस P3 बाय रो m। ओके, अभी इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, विल मार्क दिस एज 1। ओके, नाउ वी विल अप्लाई, अभी आपको ये P3 को यहाँ से एलिमिनेट करके यू हैव टू ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ऑल हाइट के टर्म्स में लाना है। ठीक है, तो ये आपका जो पोटेंशियल हेड है उसको आपको हटाना है P3। ठीक है, सो यू कैन डू इन 2-3 मैनर्स, आइदर यू कैन कंपेयर द बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 3 एंड 4 और यहाँ से आप उसको ले आइए। ठीक है, या फिर इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस HM। ठीक है, यहाँ पे ये HM अगर टोटल हाइट है, सो वी आर कंसीडरिंग, इसको थोड़ा सा रब करता हूँ मैं, फिर से बनाऊंगा। ठीक है, ये अगर टोटल हाइट आपकी HM है ये, ठीक है, सो वी आर कंसीडरिंग कि अभी आपका हाइट यहाँ पर कहीं पे हो, इनिशियल हाइट इट विल बी समवट हियर। ठीक है, सो ये आपका जो पार्टिंग गेट लाइन है, यहाँ से ये आपकी हाइट H पे होगा। ठीक है, सो अभी हमें बात करनी है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे
आपका यहाँ पे पोरिंग बेसिन से आपका लिक्विड मेटल नीचे भर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हाइट इसकी चेंज कर रही है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, वी आर गेटिंग वेरिंग हाइट ओवर हियर, ओके, वी आर गेटिंग वेरिंग हाइट, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो प्रेशर P3 है, दिस इज कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, जैसे जैसे इसके अंदर में ये भरता जाएगा लिक्विड फ्रॉम दिस पार्टिंग लाइन टू आपका H की ओर, जैसे जैसे भरता जा रहा है H से फिर HM टोटल भरेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये P3 आपका वेरी कर रहा है, बिकॉज P3 इज डिपेंडिंग ऑन दिस हाइट, ओके। सो अभी P3 आपका कैसे लिखेंगे, वी कैन सिंपली राइट इज एट, अगर जैसे बताया था आपको दैट P3, ठीक है, अगर गेज की बात कर रहे हैं तो सिंपली वी कैन राइट इट एज रो जी एच, ठीक है, इसको रो जी एच की तरह लेंगे, ओके। P3 जो रो जी एच, ये आपने फ्लूइड में पढ़ाई है दैट कोई भी हाइट आप लेते हैं सो इस हिसाब से आप रो जी एच के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यही तो है, दिस इज योर प्रेशर हेड, ठीक है। प्रेशर हेड आप कैसे निकालते हैं, दिस इज प्रेशर हेड, हेड मींस इट शुड हैव द यूनिट ऑफ योर डायमेंशन, ठीक है, जो इसका डायमेंशन है, लाइक आपका हाइट की बात करेंगे, सो प्रेशर हेड है तो इन मीटर्स होगा या आपका सेंटीमीटर या किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज P1 बाय रो जी, इट इज गोइंग टू बी सम हाइट h, ठीक है। तो P1 को आप सीधे रो जी h इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर वही चीज हम कर रहे हैं, तो P3 को हमने रो जी एच लिखा है, वेयर यहाँ पे अभी P3 को लेट मी राइट रो जी एच, इंस्टेड यू कैन राइट रो एम जी एच, ओके। सो ये जो आपका H है, दिस इज वेरिंग बिकॉज as the metal is pouring from your pouring basin and passing through sprue and runner, ठीक है, so it is filling up, तो ये आपका हाइट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर मिल रहा है, यू आर गेटिंग वेरिंग प्रेशर, ठीक है। सो हाउ वी कैन अनदर थिंग जो आपको बताया है कि आप इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और यू कैन फाइंड बाय कंपेयरिंग, है ना, और यू कैन फाइंड बाय कंपेयरिंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन स्टेशन 3 and 4, ठीक है, वहां पर भी कर सकते हैं, ओके। सो ये डायरेक्ट समझ में आता ही है कि आपका यहाँ पर ये मोल्ड कैविटी है, इसमें आपका क्या कहते हैं लिक्विड फिल हो रहा है, तो यहाँ एटमॉस्फेयर से इसके ऊपर में कितना आपका प्रेशर आ रहा है, सो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं पी गेज, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द हाइट, सो रो एम जी एच, ठीक है। तो इसको हम फाइनल लिखेंगे, सो ये आपका बनेगा जी एच टी इक्वल्स टू VC square by 2 plus now P3 by rho m is your GH, okay. So and we'll get again V3 equals to ये आपका आ जाएगा 2G and it will be HT minus H, HT minus H and whole under root, okay. So ये आपका क्या आ गया, HT minus H आपका अभी इफेक्टिव हेड रह गया, अभी टॉप गेट में जो आपका इफेक्टिव हेड था वो इट वाज जस्ट ST, नाउ इन केस ऑफ अ बॉटम गेट जो आपका इफेक्टिव हेड रह गया दैट इज ST minus H, ठीक है। अब अगर किसी केस में अगर कोई ऐसा आपका मोल्ड कैविटी आ जाता है जो जहां पे उसका जो टोटल हाइट है वो आपका पोरिंग बेसिन से ज्यादा हो जाए, ठीक है, पोरिंग बेसिन से ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा H हो जाएगा, तो यहाँ पर जाके इस केस में आके आपका क्या हो जाएगा, H becomes ST, ठीक है। तो जो आपका V3 है दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ST minus H इज 0, तो यहाँ पे आके वेलोसिटी आपका 0 पॉइंट हो जाएगा, जहां पे ये इक्वल टू H इक्वल टू ST, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इट विल रिमेन एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी रहेगा और ये खाली इतना ही फिल हो पाएगा, ठीक है। तो कभी कोई केस आ जाए कि जहां पे मोल्ड कैविटी की जो हाइट है वो आपकी पोरिंग बेसिन से भी ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा नहीं भरेगा, फिर वो इतना पार्ट एम्प्टी रह जाएगा, जहां तक हेड है, जहां तक हेड मिलेगा वहीं तक ही वो भरेगा, ठीक है, रेस्ट प्लेसेस में वो एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। सो V3 equals to ST minus H and this is nothing but gate velocity VG, है ना, इसको VG की तरह रखेंगे। So since you know that your H is varying, तो अभी आपके पास में क्या फॉर्मूला था लाइक TF के लिए, so it has to be mold cavity का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय your वॉल्यूम फ्लो रेट QG, है ना। So अभी आपके पास में यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए जो QG है which is equals to AG into VG, okay. Now this VG is varying, है ना, तो ये आपका वेरिंग है, H is varying
h is varying from 0 to hm, है ना, 0 to hm से आपका वेरिंग है। तो इसको हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन मेथड, है ना। अभी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? वेरिंग कंडीशन होती है तो हम एक स्ट्रिप लेते हैं, छोटी सी एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे लाइक दिस ऑफ थिकनेस dh which is at height h, ठीक है। अब ये क्या है कि जैसे dt अमाउंट का टाइम पास होने के बाद में इस पोरिंग बेसिक में जिस हाइट का लिक्विड भरेगा दैट हाइट इज योर dh, ठीक है। आफ्टर dt अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड सो द मोल्ड कैविटी हैज बीन फिल्ड विद dh हाइट ऑफ लिक्विड मेटल, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, आई विल जस्ट राइट ओवर, लेट some liquid metal level in mold cavity move up through a height dh in a time interval dt, ओके। सो अभी आपने टाइम इंटरवल dt ले लिया है ना, तो आपका यहाँ पे इसको हम अगर कंपेयर करेंगे, है ना, यू हैव टू कंपेयर दिस। तो ये आपका बन जाएगा qg tf इक्वल्स टू vc। यहाँ पे vc इज वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग या मोल्ड कैविटी जो भी है, ठीक है। सो ओके, तो अभी यहाँ पर आप, ये आपका वॉल्यूम बन गया, ये भी आपका वॉल्यूम है। इसको अगर हम करेंगे सॉल्व, सो दिस विल बी ag vg, या vg इसको कुछ स्मॉल लिखेंगे, दिस इज वेलोसिटी vg इनटू dt इक्वल्स टू, नाउ अभी ये जो vc है, ठीक है, अभी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम इंटरवल dt की, यहाँ पे टोटल टाइम की में बात कर रहे थे, यहाँ टाइम इंटरवल dt की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो vc होगा दैट इज इक्वल्स टू आपका एरिया ऑफ मोल्ड, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मोल्ड है, इनटू दैट हाइट, ठीक है, dh हाइट, जो जिस dt टाइम इंटरवल पे जो आपकी हाइट बढ़ रहा है ये dh। तो विल टेक दिस dh हाइट, ओके, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिप, है ना, हम इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्ट्रिप बनाया है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिप, है ना, व्हिच इज हैविंग dh हाइट, ओके। सो अभी इस स्ट्रिप को अभी सॉल्व करना है। सो अभी यहाँ से हम जस्ट विल पुट द वैल्यू ऑफ vg। तो आपका ये अभी बनेगा दिस ag इंटू अंडर रूट 2g ht माइनस h इक्वल्स टू am dh, ठीक है। तो अभी इसको रीअरेंज करके देखते हैं कहाँ पे क्या रखना है। सो यहाँ पे विल गेट ag, सो इसको सिंपल dt रखते हैं, dt इक्वल्स टू am by ag, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी dh by अंडर रूट 2g ht माइनस h, ओके। सो आपको टाइम फॉर फिलिंग निकालना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे, है ना। सो इंटीग्रेशन इज, यहाँ पे dt की बात कर रहे हैं तो 0 से tf है फिलिंग टाइम के लिए, ओके। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इट विल बी फ्रॉम 0 टू hm, which means at t equals to 0, okay, h equals to 0, and at t equals to tf h equals to hf। इसका मतलब ये होता है, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे यहाँ से ये आपका बन के आएगा, दिस इज इक्वल्स टू tf इक्वल्स and am by ag and under root 2g, this is your constant, so we'll take it outside, am by ag, ठीक है, and this is 1 by under root 2g। तो अब इसको सॉल्व करिए, बताइए इसको कैसे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 by h and this is dh and totally under root ht by h, ठीक है। सो ht इज योर कांस्टेंट टर्म, खाली आपको h में करना है, तो ये 1 by under root h है। तो अभी आप कैसे सॉल्व करते हैं किसी इंटीग्रेशन को? तो अगर इफ इट इज इंटीग्रेशन x
n होता है, so you will solve it x and dx होगा, ठीक है। so how you solve it at x n plus 1 upon n plus 1, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे आपका जो n है दिस इज माइनस हाफ ना, यहाँ पे जो n है दिस इज माइनस हाफ, तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर माइनस हाफ प्लस 1 एंड माइनस हाफ प्लस 1, एंड यहाँ पे आपका जो पूरा टर्म है वो आपका पूरा टर्म इधर आएगा, तो ये आपका पूरा इधर टर्म आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी, एंड यहाँ पे माइनस साइन भी है, इसको भी हमें देखना है, सो am by ag डिवाइड बाय अंडर रूट 2g, सो दिस इज गोइंग टू बी, कैसा हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा होल माइनस यहाँ पे लेते हैं क्योंकि ये माइनस h का माइनस आएगा, देन दिस इज ht माइनस h माइनस हाफ प्लस 1, okay, and divided by minus half plus 1, and this is we are doing from 0 to hm, okay। अब इसको इतना सॉल्व करना है, तो यहाँ पे फाइनल ये कितना आ जाएगा, ये माइनस हाफ प्लस 1 है तो हाफ हो जाएगा, ऊपर ऊपर चल जाएगा, तो tf इक्वल्स टू am by ag into 2 by root 2g, okay, and this will be your अंडर रूट एच टी माइनस एच, ये भी ऊपर में अंडर रूट एच टी माइनस एच चल जाएगा, जिसको होल सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इन दिस फॉर्म एच टी माइनस अंडर रूट एच टी माइनस एच एम, ये सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको ये पूरा बन के आ जाएगा, okay। So this is the time of pouring, okay, for your bottom gate system। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 by root 2 को हटा दीजिए, so tf it becomes am by ag, ये आ जाएगा into under root 2 by g, and this is into under root ht minus under root ht minus hm। अब मेक श्योर यहाँ पे ये होल अंडर रूट में नहीं है, ये अंडर रूट एस टी है देन माइनस अंडर रूट एस टी माइनस एच एम है। कई बार गलती से क्या कर देते हैं, ऐसे ले लेते हैं एस टी माइनस एच एम, है ना, फिर ऊपर से एस टी भी कई बार काट देते हैं, फिर जो कुछ बचता है अजीब सा फिर वो सॉल्व करते हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, है ना, ऐसा नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दिस इज फाइनल इक्वेशन, दिस इज फॉर बॉटम गेटिंग। Thanks, Surya. शिवम साहू, आपके माइक ऑफ रखा करिए, जब कोई काम नहीं है तो जबरदस्ती फोन रखते हैं। सॉरी सर। ओके, चलिए, देन कमिंग टू यूज दिस मच ऑफ स्पेस, चलिए यहाँ पे कर देंगे। So we'll go with the next is your screw design, okay। So just before the screw design, let's understand advantages now and disadvantages of top and bottom gating, okay। So टॉप गेटिंग की अगर हम बात करते हैं, if you're talking about the top gating system, okay, so in case of a top gating हमारे पास में क्या फायदा होता है, that it is used ना, तो we have less solidification time, okay, so used for ferrous materials, okay, and इसमें दूसरी पार्ट क्या आ जाता है कि यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलता है, ठीक है, सो स्टेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे इसको, okay, so which results in
your directional solidification. Okay, so अभी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट? The temperature gradient is nothing but your difference of temperature divided by height of mold. Delta T is your temperature difference at top and bottom of the mold. तभी आपका टॉप गेट सिस्टम है, टॉप गेट सिस्टम है, यहाँ से आपने स्क्रू से होते हुए यहाँ पे आपका मोल्ड भर रहा है, ठीक है, ये आपका स्क्रू है एंड दिस इज। अब ये जो आपका टेम्परेचर यहाँ पर आप नापेंगे एंड आप यहाँ पर नापेंगे ना, दोनों जगह में टेम्परेचर माने ये T1 है T2 है, दोनों पॉइंट पे नापना है। अभी क्या होता है, यहाँ पे ये जल्दी भर रहा है, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको कम है क्योंकि यहाँ पे फेरस मटेरियल है, ठीक है, तो लेस सॉलिडिफिकेशन टाइम एंड लेस पोरिंग टाइम ऑल्सो। तो पोरिंग टाइम भी कम है, सॉलिडिफिकेशन टाइम भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, should be as less as possible, ओके, क्योंकि अगर लेस होगा तभी यहाँ पे डिफरेंस दोनों में कम होगा, ठीक है। अगर ये दोनों में टेम्परेचर बराबर से आ जाए या इनमें डिफरेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें हेल्प मिलता है, ठीक है। और डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन से क्या मतलब है, दैट इट शुड बी फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट्स, ठीक है, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी डिफेक्ट्स। So directional solidification, okay, so the solidification where the casting is free of, okay, any defects, free of defects, like इसमें कोई voids नहीं होना चाहिए एंड कोई श्रिंकेज नहीं होना चाहिए, इस तरह से श्रिंकेज कैविटी नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ओके। तो इस तरह के जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को हम इस तरह के सॉलिडिफिकेशन को हम बोलते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। तो इसमें आपका स्टेप बाय स्टेप आपका क्या कहते हैं श्रिंकेज होता है कि पहले मोल्ड कैविटी श्रिंक होना चाहिए, ठीक है, सॉरी पहले मोल्ड कैविटी सॉलिडिफाई होना चाहिए, फिर आपका राइजर सॉलिडिफाई करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होता है दिक्कत आपकी बॉटम गेटिंग में समझते हैं, ठीक है। कमिंग टू सेकंड इज बॉटम गेटिंग। तो बॉटम गेटिंग का फायदा क्या होता है, दैट देयर इज नो इरोजन, ठीक है, ड्यू टू लॉस इन द मोमेंटम ना, वहां पे इरोजन हो सकता है, टॉप गेटिंग में आपका इरोजन होता है क्योंकि वहां पे आपका डायरेक्ट ऊपर से आ रहा होता है एंड काफी स्पीड में आ रहा होता है, तो वहां पे आपका सॉइल इरोजन, सैंड मोल्ड का इरोजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा कोई इरोजन नहीं होगा, मोमेंटम पूरा लॉस हो जाएगा एंड बट यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे आपका अनफेवरेबल, यू गेट अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मिलता है, सो जिसकी वजह से impossible to have your directional solidification, okay। So why it is impossible to have directional solidification, just basic diagram बना लेते हैं इसको, this over here, यहाँ पे छोटा सा राइजर बना दिया। तो यहाँ पे ये जो आपका कैविटी, ठीक है। अभी क्या करेगा कि आपका यहाँ से आपका हॉट फ्लूइड है, ओके, यहाँ पे हॉट मेटल है, हॉट लिक्विड मेटल है। अभी ये हॉट लिक्विड मेटल यहाँ पर आपका धीरे धीरे नीचे से फिल होता जा रहा है, ठीक है, नीचे से फिल हो रहा है, वहां पे आपका ऊपर से फिल होता था, ठीक है। तो अभी नीचे से फिल हो रहा है, तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो भी ऊपर पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कोल्डर, है ना, या इट इज कूलर
ठीक है। अब वो कूलर हो जाएगा तो वो ये ऊपर वाला पार्ट आपका सॉलिडिफाई हो सकता है, करने लगे, ठीक है। अभी ये सॉलिडिफाई करेगा तो फिर राइजर से, ऊपर वाले राइजर से जो आपको जहां पर भी कोनों कोनों में जहां पे आपको जाना था लिक्विड मेटल को, ठीक है, कि वो जहां पर आपको श्रिंकेज क्योंकि आपका लिक्विड आपका जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वहां पे श्रिंकेज होगा, ठीक है, श्रिंकेज होगा, वॉइड्स बनेगा। तो उस जगह पर आपको राइजर से आप लिक्विड मेटल को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ताकि आपको वहां पे जहां पर भी श्रिंकेज हो गया है, यहाँ पर भी वॉइड्स आपके बन गए कास्टिंग में, तो वो लिक्विड मेटल वहां जाकर राइजर से उसको भर दे और वहां पे वॉइड्स और श्रिंकेज कैविटी भर जाए, ठीक है। बट अगर ऊपर वाला ही पार्ट आपका, ठीक है, इफ द अबव पार्ट बिकम्स कूलर, ठीक है, तो वहां पे आपका राइजर से आप फीड नहीं कर पाते हैं कि वो हर वॉइड्स में आपका लिक्विड मेटल को चला जाए। तो इस वजह से आपका जो यहाँ पे जो डेल्टा टी होता है, दैट दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट व्हिच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय एचएम, ओके। सो यहाँ पे ये आपका सिग्निफिकेंट होता है, इट इज मोर इन योर बॉटम गेटिंग सिस्टम। तो जहां पर भी आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको ज्यादा मिलेगा, वहां पे आप डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को अचीव करने में आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो पोरिंग टाइम है वो ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई पोरिंग टाइम, ठीक है। सो पोरिंग टाइम ज्यादा होने की जगह में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है। इस टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से आपको यहाँ पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इश्यू है। अब इसको उस हिसाब से लोग डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पे लाइव राइजर देने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कुछ इधर से अलग से और कुछ राइजर देने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 2-3 राइजर कंडीशन फिर अलग से डिजाइन करनी पड़ती है इस टेम्परेचर ग्रेडियंट को कम से कम रखने के लिए, ठीक है। ये अलग इश्यू है, क्योंकि देखो अगर आपका सॉलिडिफिकेशन होने के लिए क्या होता है ना कि आपका सब एक ही रेट से पूरा का पूरा कास्टिंग आपका सॉलिडिफाई हो जाए ढंग से, तो वो होता है। अभी ऊपर ठंडा है, नीचे बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसमें अलग अलग आपका दिक्कत करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो सॉलिडिफिकेशन आपका यूनिफॉर्म आपको अचीव नहीं होगा, ओके। तो दिस इज द इशू।